Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the live session of Daily News Analysis. Today is 29th of January 2024. You are watching with Naresh Sharma. Today we have various important news and current affairs which can be relevant for your examination, and we are going to discuss all of them one by one. The first among those news is Houthis. You know, Houthis is a militant group. So now first start with the context. Context के साथ में start करते हैं कि ये issue अभी न्यूज में क्यों है. यमन्स ईरान अलाइंड हुथीज. इट मींस जो यमन के हुथी ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ हुथीज, militant group that is located in Yemen and supported by Iran. Okay, it have stepped up their attacks on commercial vessels transiting the Red Sea. It means these Houthi groups are continuously attacking the commercial ships those are transiting from this route. You know, this is the route, and here is the Strait of Bab al-Mandab, and this is the Red Sea, which is connected with the Mediterranean Sea through Suez Canal. So keep it in mind that Suez Canal is the connecting route between Red Sea and the Mediterranean Sea, and here is the Strait of Bab al-Mandab. तो ये न्यूज में इसलिए है कि जो हुथी ग्रुप है ये अटैक्स कर रहे हैं यहाँ से निकलने वाले कॉमर्शियल व्हीकल्स पर, और अभी कुछ समय के बाद तो इन्होंने इन अटैक्स का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर दी गई है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द बेसिक पॉइंट्स अबाउट हुथीज. Who are Houthis? Actually, Houthis are a militant group in Yemen. What is Yemen? Yemen is a country situated in the West Asia, and its capital is Sana'a. This is the capital of Yemen. First of all, going to discuss about the Houthis, you have to understand the two branches of Islam. One is Sunni group and another is Shia. So in the world, most of the Islamic followers are the Sunni Muslims, and the minority is the Shia Muslims. So Yemen is the follower of Shiite ideology, and Iran is also a country which follows the Shia beliefs. Okay, but the Saudi Arabia and other countries like United Arab Emirates, Pakistan, and other countries, they follow the Sunni belief system. Okay, so these are the two groups. Wherever you will find any kind of conflicts between Islamic world, then there may be the basic factor, that is the conflict between Shia and Sunni. So here the main point of conflict is almost based on their belief system. So Yemen is a Shiite country and Iran also a Shia country, but Saudi Arabia is a Sunni country. Okay, so actually the Houthi group are Shia group, and they are in minority in Yemen. Actually, Yemen have various kinds of Islamic followers, and there the majority is Sunni Muslims. So Shia Muslims, that is Houthis, they want their more participation in the government of Yemen. Now we are going to discuss some other points. In recent context, the Houthi group, that is, this is the region, Houthi forces, they have controlled almost this region from the government of Yemen. The red colored regions are the conflict zones, which are under conflict between Houthi forces and UAE support anti-Houthi forces and government forces. And this is the grey color area. It is the area which is under the control of
यमन गवर्नमेंट, एक्चुअल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें देखने को पता चलता है कि यमन में कई तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ हुथीज हैं, उन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है 2014 से ही, और कुछ एरिया है जहाँ पर यमन की गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल है। तो कुछ एरिया है जहाँ पर जो यूएई है, उन्होंने क्या कर रखा है, सपोर्ट करके उन एरियाज में एंटी हुथी फोर्सेस को भी अपना कंट्रोल जो है उसमें सपोर्ट कर रखा है। सो हुथीज के बारे में अगर जाने तो हुथीज ऑफिशियली नोन एज अंसार अल्लाह, इट मींस पार्टीशंस ऑफ द गॉड। इनका ऑफिशियल नेम ये है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दे आर एन आर्म्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो यमन के अंदर जो हुथीज हैं वो एक्चुअल में रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट है। फर्स्ट वो रिलीजियस मूवमेंट है, देन वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, और वो कंट्रोल करना चाहते हैं यमन पर। हुथीज कैसा है, शिया ग्रुप है। शिया के अंदर में भी क्या है, शिया ग्रुप्स में भी जो शिया जो फेथ है इस्लाम की, उसमें शिया सुन्नी तो होते ही है, तो शियाओं के अंदर में भी एक और सेक्ट है जिसको कहते हैं जायदी। तो ये जो हुथीज है वो जायदी कम्युनिटी में आते हैं शिया में। शियाइट मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड जायदीज आर अ माइनॉरिटी ऑफ शियाज। तो शियाइट्स की जो कम्युनिटी है उसमें ये माइनॉरिटी है। जायदीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन डॉक्ट्रिन एंड बिलीफ फ्रॉम द शियाइट्स who dominate Iran, Iraq and elsewhere. It means जो हमने अभी बात की थी इस्लाम की, उसमें शिया और सुन्नी ये दो तो हैं ही, लेकिन शियाओं में भी माइनॉरिटी में आते हैं जायदी कम्युनिटी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली अब हम इस्लाम की बात करते हैं तो लगभग 72 फिरके हैं इसमें इस्लाम में। तो 72 टाइप की कास्ट हैं और उनके डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। और एक गजब की बात यह है कि ये जो 72 जितने भी फिरके हैं वो सब एक दूसरे को, बाकी अदर्स को अच्छा वाला मुस्लिम नहीं मानते, वो रिजेक्ट करते हैं कि हम सच्चे और अच्छे मुस्लिम हैं, बाकी दूसरे वाले मुस्लिम नहीं है। और इसी बात को लेकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसी पर बेस्ड है मोस्ट ऑफ द केसेस। दे आर माइनॉरिटी इन यमन में, वो माइनॉरिटी है, और मेजोरिटी क्या है यमन में, दैट इज सुन्नी मुस्लिम्स। नाउ व्हाट आर द अदर पॉइंट्स। देखो जो शियाज हैं स्पेशली जायदी, तो दे आर थर्ड है ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन इन यमन का, अराउंड जो वन थर्ड पार्ट वो वहाँ पे बनाते हैं। और वो चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं कि जो नॉर्दर्न यमन है उसमें उनकी ऑटोनॉमी हो, ठीक है, जायदी कम्युनिटी के लिए। और वो बहुत लंबे समय से यमन की सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ में, उसके साथ में वो फाइट में है, कन्फ्लिक्ट में है। हुथीज टुक ओवर द यमन का जो सना जो कैपिटल है, आज भी किसका उस पर कंट्रोल है, वो हुथीज का है। वहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है यमन की कैपिटल पे। इट हैज बीन अंडर कंट्रोल ऑफ हुथीज सिंस 2014, और उसमें आकर के तो 2016 तक आते आते बहुत सारा इनका एरिया बढ़ गया। हुथी मूवमेंट बिगन एज एन एफर्ट टू मेंटेन ट्राइबल ऑटोनॉमी। स्टार्टिंग में वो चाहते थे, बाद में फिर इनको दूसरे कंट्रीज ने भी इंटरफेरेंस किया, और जो है उस पूरे के पूरे यमन रीजन में दे हैव इंक्रीज्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग शिया, सुन्नी, यूएई, हुथी फोर्सेस, जायदीज। तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन डेवलप हो गया। The actual ideas of Jaidi community or the Houthis are that they oppose means they are anti-American and anti-Semitic rhetoric। means ये किसके विरोधी हैं हुथीज, ये अमेरिका के अगेंस्ट में है। तो जो भी कंट्री अमेरिका का दोस्त होगा वो हमेशा उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे, कौन, हुथीज। एंटी सेमेटिक मीन्स ये ज्यूज के भी अगेंस्ट में है, ज्यूज के विरोधी है, मीन्स उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि इस पृथ्वी से हमको ज्यूज को खत्म करना है, ठीक है, तो उस आइडियोलॉजी के हैं। इसीलिए अब यहाँ से आपको एक आइडिया समझ में आएगा, दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन दैट हुथीज आर अटैकिंग इन रेड सी एंड स्पेशली ऑन कॉमर्शियल शिप्स एंड दे आर आल्सो अगेंस्ट इजराइल। तो अब आपको समझ में आ गया कि हुथीज क्यों अभी उन्होंने रिसेंटली अटैक क्यों बढ़ाए, बिकॉज जो पैलेस्टीन, ठीक है, और इजराइल का जो आपस में झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट है, उसमें ये सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन पीपल को, गाजा के पीपल को अगेंस्ट इजराइल। दैट्स व्हाई उन्होंने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में अटैक्स अपने स्टार्ट किए हैं। कुछ मामलों में तो उन्होंने जो इजराइल के जो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है, उनके जो शिप्स वगैरह है, उन पर भी अटैक किए। रिसेंटली अभी उन्होंने ब्रिटेन का एक शिप था उस पर अटैक कर दिया था, और फिर इंडियन नेवी जो वहां जाकर के उन्होंने उसको जो है फायर फाइटिंग टीम ने उसको बचाया था। तो उसमें उनकी मिसाइल से, जो हुथीज हैं उनकी मिसाइल से जो है उसमें जो है आग लग गई।
Several of the group leaders have been designated as terrorist by the United States. और इनमें से बहुत सारे जो ग्रुप लीडर्स हैं उनको टेररिस्ट का जो है ब्लेम किया गया है, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। इट्स क्यों है ये, कंटेक्स्ट में क्यों है कि इंडिया इज ऑल सेट टू बिगिन द एक्सपोर्ट ऑफ ग्राउंड सिस्टम्स फॉर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस। मींस हम बेचने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, किसके लिए, फिलीपींस के लिए। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। दिस इज द ब्रह्मोस मिसाइल। व्हाई इट्स एन अचीवमेंट? बिकॉज टिल नाउ वी आर जस्ट importer of defense technologies like missiles, Rafale, fighter jets, warships, and helicopters, tanks. There are so many kinds of defense technologies which India import from other countries. But now they change that we are now going to export our defense technologies and defense manufactured products which has been indigenously produced by Indian DRDO or other agencies. So now, first of all, have some basic points about ब्रह्मोस मिसाइल। व्हाट इज? इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सुपरसोनिक है। और कहाँ से लॉन्च हो सकती है? लैंड से, सी से और एयर से। इट मींस लैंड से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हो, सी हमारे जो वॉरशिप्स हैं वहां से भी इनको हम लॉन्च कर सकते हैं, एयर और हमारे जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वहां से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको जो डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एयर स्पेस एजेंसी। इसने इसको क्या किया था? डेवलप किया था। इसमें ब्रह्मपुत्र के नाम से ब्रह्म लिया गया और मोस्को का मॉस लिया। तो ये दो रिवर हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर और मोस्को रिवर जो है वो किसकी है? रशिया की। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ब्रह्मोस। तो ये इन नेम से मिल करके हमारी क्या है? ये ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ये मिसाइल जो हमने डेवलप की थी, इट वाज द हेल्प ऑफ रशियन टेक्नोलॉजी। इट इज अ 2 स्टेज मिसाइल है। इसमें मींस सॉलिड जो है फ्यूल भी होता है और इसमें जो है लिक्विड रैमजेट इंजन का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, इसको हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन और जो रैमजेट इंजन क्या होते हैं। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स। हमारे पास जो जितनी जो है उसमें अभी ऑपरेशन में है, इसकी स्पीड अराउंड 2.8 मैक तक जाती है। ठीक है, ये स्पीड को हम मेजर करते हैं मैक में। इट हैज लॉन्च वेट अराउंड, इसका इतना जो है लॉन्च वेट है, ये इसकी 400 to 500 किलोमीटर इसकी जो है एक्सटेंडेड रेंज है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट्स। मींस इफ you have launched this missile against a target A, then now forget. It will automatically chase the target. If this is the target which is continuously changing its location, even in that condition, BrahMos missile will hit this target. अगर टारगेट बार बार अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, तब भी ब्रह्मोस उस टारगेट को चेस करेगी और हिट करेगी, अपने आप को ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज पीएम यशस्वी स्कीम, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड रिसेंटली इन न्यूज PM Young Achievers Scholarship Award Scheme. This is the full form of this scheme. What is the context? A total of around 32.4 crore has been released for the pre-matric scholarships and itne crore for post-matric scholarship to states and union territories under this scheme. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा 2023 में इनको क्या किया है? रिलीज किया है। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट द सेम स्कीम. What is this scheme and what are its objectives? So now let's understand all those objectives and other key points. It is a scholarship scheme. कैसी स्कीम है ये? स्कॉलरशिप देती है, पैसा देती है उसमें। फॉर किसके लिए है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसको आप एक नए वर्ड से और भी जानते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। ऐसी कुछ ट्राइब्स हैं जिनको बाद में डी नोटिफाइड कर दिया गया 1952 में। ये तो मींस क्या है ये ट्राइब्स? देखो
ब्रिटिश रूल के टाइम पे देयर वर वेरियस ट्राइबल पीपल जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल बता दिया था, उनको नोटिफिकेशन निकाल करके बताया था कि ये सारे के सारे ट्राइबल पीपल हैं, ये क्रिमिनल हैं। मींस उनकी पूरी कम्युनिटी को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया था इन्होंने। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद में इन सारी कम्युनिटीज को क्या किया गया, डी नोटिफाई किया गया। तो और क्या है, ये नोमैडिक है। इट मींस दे कंटिन्यूअसली चेंज देयर रेजिडेंशियल प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। सो दीज आर नोन एज डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये स्कीम किस किस के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूसी या ईडब्ल्यूएस के लिए है, और डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए भी ये स्कीम है। अब इसमें क्या क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड नोमैडिक क्लासेस, सेमी नोमैडिक ट्राइब जो है जितनी भी, ये उनके लिए एलिजिबल होंगे। उनके पेरेंट्स की इनकम है, जो गार्जियंस की इनकम है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2.50 मींस 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Those students would be studying in top class school in class 9 और 12। क्लास 9 से लेकर के 10 तक के लिए मिलती है स्कीम और 11 से लेकर 12 तक के लिए ये स्कीम मिलती है। और ये उन बच्चों को मिलती है जो ठीक ठाक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। These scholarships shall be available for studies in India only। Means इंडिया से बाहर पढ़ने वाले बच्चों को ये अवेलेबल नहीं है, भले ही वो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। These will be awarded by the government, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है वो इनको प्रोवाइड करती है, और अपने ही स्टेट या यूटी के स्टूडेंट्स को। इट मींस इफ यू आर परमानेंटली सेटल्ड इन उत्तर प्रदेश and you have domicile certificate of UP, then you will get the benefit from the UP government। आप दिल्ली में आकर के उसके बेनिफिट नहीं ले सकते दिल्ली गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी। क्या क्या इसके एंटाइटलमेंट्स हैं, तो 75,000 पर एनम आपको मिलता है। किसमें, इस स्कीम में यदि आप 9 से 10 तक पढ़ते हैं तो, और 1,25,000 पर एनम आपको मिलता है यदि आप 11 और 12 क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल वगैरह की सारी फीस को इंक्लूड किया जाता है। which is the implementing agency for this scheme? So the implementing agency for this scheme is the Department of Social Justice and Empowerment under the Ministry of Social Justice and Empowerment। तो ये मिनिस्ट्री है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ बच्चों को इस स्कीम के बारे में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, so that the financially poor students can get this scheme, the benefits from this scheme and they can perform well। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जिनको आप जानते हैं, तो वो इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और द न्यूज फॉर टुडे इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऐसे ये एक अभी क्या हुआ है, सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने अपने सर्वे के डेटा को रिलीज किया है। नाउ लेट्स हैव some basic understanding about this survey। The AISHE report has been published by the Ministry of Education since 2011। This report कब से स्टार्ट हुई है, 2011 से ही ये रिपोर्ट कंटिन्यूसली आती रहती है। Aim is to portray the status of higher education। ये किसका जो है स्टेटस शो करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड स्टेटस क्या है इंडिया में, वो उस सबको क्या करना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि the survey covers all institutions engaged in imparting higher education। means ये सारे के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इसमें क्या करता है, कवर करता है ये सर्वे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जो 12th के बाद होते हैं, आफ्टर 12th। इट मींस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डॉक्टरेट, डीलेट, इन सारे के सारे कोर्सेज में जो बच्चे एनरोल होते हैं, These students जो है इस स्कीम के अंदर में, सॉरी इस सर्वे के अंदर में आते हैं कि हायर एजुकेशन का जो स्टेटस है इंडिया में क्या है। डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इट इज बीइंग कलेक्टेड ऑन द सेवरल पैरामीटर्स सच लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट क्या है, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, मीन्स आर्ट्स के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंसेज, एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स कैसे उनके हैं, एजुकेशन का फाइनेंस उनका कैसा सिचुएशन है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। सो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स विच आर कंसीडर्ड व्हेन द सर्वे टेक्स प्लेस।
नाउ इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट सच एज इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, कि किस एरिया में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। सपोज करो कि कोई एक वन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मींस 12th पास करने के बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज टू एनरोल देमसेल्फ इन कॉलेजेस। सो दिस इज नोन एज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मींस वहां जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। pupil teacher ratio, it means that teacher और जो टीचर एंड स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है। मींस यहाँ अगर मैं कहूँ टीचर और यहाँ हो गए स्टूडेंट, स्टूडेंट को पीपल कहते हैं, इट मींस शिष्य। स्टूडेंट इट मींस वन टीचर पर कितने स्टूडेंट जो है हैं, तो मींस 200 स्टूडेंट्स अगर वन टीचर को पढ़ा रहा है तो रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, तो इन सबको भी ये किसमें लेता है, कंसीडरेशन में। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इट मींस स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन हायर एजुकेशन दे बिलोंग फ्रॉम विच जेंडर, मींस वो गर्ल्स भी उनमें है कि नहीं, ट्रांससेक्सुअल उसमें है कि नहीं, गे उसमें है कि नहीं, बाइसेक्सुअल उसमें है कि नहीं, बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो है। पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी देखा जाता है कि पर स्टूडेंट पर कितना एक्सपेंडिचर इंस्टीट्यूशंस में या वहां पर किया जा रहा है। तो दीज ऑल पैरामीटर्स और जो इंडिकेटर्स हैं, इन सबको क्या किया जाता है, कंसीडरेशन में लिया जाता है। फॉर दिस सर्वे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या माना जाता है कि जब आपने 12 ईयर का स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब आप एजुकेशन में जाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड हायर एजुकेशन, बिकॉज भाई फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक आपके 12th हो जाएंगे ना, 12 ईयर्स। तो इसके बाद जब आप एजुकेशन में जाएंगे, दैट विल बी नोन एज हायर एजुकेशन। Now let's have some key points about this survey, that what are the key indicators कि क्या हमको मिला इस सर्वे के बाद में। तो ओवरऑल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में। मींस पहले जो बच्चे ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, उनमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 28% के आसपास अब वो पहुंच गए हैं, जो कि पहले 27.3% हुआ करते थे। फीमेल का अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें तो वो 28.5% के अराउंड पहुंच गया है, जो कि पहले कभी 27.9% हुआ करता था। अगर हम बात करें 2014 और 15 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था गर्ल्स का, वो 22.9 था, और आज कितना पहुंच गया, वो 28.5% पहुंच गया। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें, SC/ST स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो देयर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज आल्सो इंक्रीज्ड। वो कितना हो गया, अराउंड 2% का उसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। कि 2020-21 में जो SC स्टूडेंट्स थे उनका ये GER इतना था, ST का इतना था। अब वो कितना हो गया है, 27, देखो इससे इतना पहुंच गया है, और 23 से ये 25 तक पहुंच गया। इट मींस SC और ST के जो मींस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी अब हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। द एनरोलमेंट ऑफ OBC स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका भी एनरोलमेंट रेशियो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में, तो 78.9% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। इट मींस सपोज करो 12th क्लास पास करके 100 स्टूडेंट जो है पास हुए, उसमें से 78%, तो इसमें से अराउंड 78 स्टूडेंट्स कहाँ की तरफ जाएंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जबकि जो 12% स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, इसमें से 12%। ठीक है, तो 12% स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इट मींस बाकी के अराउंड जो 22% स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ है, मींस वो 12th के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यूस नहीं करते। नेक्स्ट, अमॉन्ग द डिसिप्लिन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिसिप्लिन्स की तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आज भी पसंद किया जाने वाला जो सब्जेक्ट है दैट इज आर्ट्स। तो 34.2% के आसपास बच्चे हमारे यहाँ आर्ट्स में जाते हैं हायर एजुकेशन में। साइंस में अभी ओनली 14.8% स्टूडेंट जा रहे हैं, कॉमर्स में 13.3, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 11.8% स्टूडेंट्स मूव कर रहा है हायर एजुकेशन के लिए। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें, सॉरी स्ट्रीम्स की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन सोशल साइंसेस में ही ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं PG पर। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की अगर हम उनकी नंबर्स की बात करें तो देखो टोटल
जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जितना भी स्टडी कर रहा है, तो ऑल द स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में हैं, उनमें से 58.6% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसी हैं, गवर्नमेंट है, और जो कंट्रीब्यूट करती है 73.7% स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है, वो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अराउंड इतने परसेंट स्टूडेंट्स का क्या होता है, एनरोलमेंट होता है। कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा फीस वगैरह भी होती है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर बच्चों का लगता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ आ चाहते हैं, जेएनयू आना चाहते हैं, डीयू आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है और क्वालिटी एजुकेशन है। एज पर द सर्वे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी टीचर्स में अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो 56.6% मेल हैं और 43.4% क्या है, फीमेल है। तो अभी भी जो फीमेल है टीचिंग में वो काफी कम है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन। तो हमने इस सर्वे को देख लिया। समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस बेस्ड ऑन these kind of जो है data or facts. So now we are going to revise the today's current affairs. तो फर्स्ट न्यूज वाज हुथीज। ये हुथीज कौन है, ये यमन का टेररिस्ट ग्रुप है जो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सिया में भी जैदी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है अंसार अल्लाह। इसको सपोर्ट करता है ईरान, ईरान का दुश्मन है इजराइल और इजराइल का दुश्मन है हुथी, तो इसीलिए वो इजराइल के अगेंस्ट में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में रेड सी के वाले एरिया में अटैक्स कर रहे हैं कॉमर्शियल शिप्स पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस इज इंडिजिनियस मिसाइल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रशियन गवर्नमेंट और रशियन टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। इसमें ब्रह्म जो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द मॉस्को जो रिवर है उनके नेम पर क्या है, इसका नेम है। ये लैंड, सी और एयर दोनों से इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज 400 से 500 किलोमीटर है और ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल वर्क करती है। पीएम यशस्वी स्कीम एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसको यूज किया जाता है, जिसको जो लॉन्च किया गया है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू सपोर्ट फाइनेंशियली द स्टूडेंट्स फ्रॉम द ओबीसी, ईडब्ल्यूसी एंड डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। इन बच्चों को सपोर्ट करना है। इसमें 9 और 11th क्लास के बच्चों का इसमें एनरोलमेंट होता है, फिर उनको 75,000 पर एनम मिलता है 9 से 10th क्लास तक, और 1,25,000 पैसा जो रुपीज मिलता है वो 11th and 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें ट्यूशन फी, हॉस्टल फी सारी इंक्लूड होती है। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नाउ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन हुआ है, उसमें ऑल अराउंड अगर हम बात करें तो सारे के सारे फैक्टर्स में इंक्रीमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में। मींस हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट भी बढ़ा है, और चाहे वो मींस ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ओबीसी स्टूडेंट्स हो, एससी स्टूडेंट्स हो, एसटी स्टूडेंट्स हो, उन सब में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। सो वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन एंड आई होप you enjoyed today's session and you also noted down various important facts and points, so you can revise those points and concepts before your examination. So today is we are going to end today's session. So goodbye, take care, bye bye.